So what did we complete in the board, students? Can you tell me that? Which topic is going on? So we were doing electrostatics. Electrostatics. So till where I've completed it? Switch over. Wait a minute. So last we did principle of superposition. Okay, fine. Principle of superposition of field and force we consider. Fine. Okay, Chirag. Fine. Thank you. Students, but y'all know it that my sessions are there today because students are coming aram se waiting for so long time. Students, y'all are aware about it, isn't it? It has been posted in the group also, isn't it? Yes, sir. Okay. Let's move ahead, students. Today, the session will be taking it for 1.5 hours, students. Okay. And Rosar is in this batch. Students, are you from Foundation Builder or FIGC board? Sir, foundation builder and some of us are there in FIGC also. But I posted in FIGC board, isn't it? Yes, sir. Okay, fine. I posted the proper board. Maybe the other students, I'm not able to post it in that case. So I've sent it to Ganga Cell. The link I've already sent it to him. Because there are two batches in that. Okay, students, let's move ahead. Principle of superposition. First, in the time new students enter in students, I want to just solve this question for principle of superposition of 4 students. Okay. I'll give you a question related to that. Did I tell you about electric dipole, students? Electric dipole moment. Okay, very good, Chirag. Then I must have told you also electrical intensity cannot pass inside a conductor. They can pass through an insulator. Okay, absolutely correct. Good. Chirag is the most wise student. Okay, उसको पता है कि मैंने क्या किया है, कितना किया है. That is very important. That's very true. Good enough. Okay. Okay, students, did I give you the expression for torque acting on an electric dipole? Torque acting on an electric dipole? No, sir. Okay, fine. Okay, well, did I put forward a question to you all? If I give you 3 charges of equal magnitude, students listen carefully. If I give you 3 charges of equal magnitude are placed at 3 corners of an equilateral triangle, then what is the resultant electrostatic force and the resultant electric field intensity at the centroid of the triangle? ये पूछा था मैंने, शायद मैंने पूछा था. Yes, sir. What? आंसर दिया था. गजर पर तूने ही आंसर दिया था ना? Yes, sir. हाँ या ना बोल. Yes, sir. Oh, that means I remember after a week also when I'm interacting, I remember the question डाला था मैंने. Okay, fine students. So I should know what am I doing like this. Okay, fine. Okay, students, let me give you a question to the rest of more students entering. Okay? Listen to students carefully, okay? Try to crack this question, students. Please pay attention. Okay, the question is, there are 3-point charges are placed at the vertices of a right angle isosceles triangle, as shown right now. I'm showing it to you. Okay, so this is an isosceles right angle triangle. Okay. This is an ideal consider. These are isosceles right angle triangle students. Okay.
So I'll consider 3-point charges are placed at vertices of an isosceles right angle triangle. So I'll consider at point A, at point B, and at point C. And I'll give you the charges for it. At point C, you have a charge of 10 plus 10 mu C. At point B, you have plus 2 mu C. And at point A, also you have plus 10 mu C. Okay, it's an isosceles triangle as shown in the figure. What is the magnitude? Listen carefully, students. What is the magnitude and direction of resultant electric field? What is the magnitude and direction? Agreed, and direction of resultant electric field we consider at point P. At point P, and where is this point P? Which is the midpoint of the hypotenuse. At point P, which is midpoint of hypotenuse. क्या ये क्लियर हुआ सबको? मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, और ये पॉइंट P कहाँ पे है? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज. Midpoint of hypotenuse. Yes. Let's see how many people can get the answer of this. Start solving it. Is anybody, students, any of you who can get the answer for this? Shall I solve it for you all, students? Yes, sir. कुंज क्या 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 बोल रहा है तू? कुंज, say it once again. सर ए वाले ग्रुप में लिंक नहीं भेजा है. FIJC ग्रुप ए या ग्रुप बी वो है ना? ए. तो ये कौन सा ग्रुप है? एक तो FIJC का ग्रुप है, ये भी FIJC का एक ग्रुप है ना? यस सर. दूसरे ग्रुप में I could not send the link over there क्योंकि this only admins can send it. तो मैंने ज्ञानेंद्र सर को ऑलरेडी लिंक भेज दिया 12 बजे के पहले मैंने भेज दिया था. जब इनको मिला तुम लोग को भी दूसरे को भी मिला, लेकिन FIJC बोर्ड. अच्छा, this is FIJC board B and the other one is only FIJC, isn't it? यस सर. Yes, एक sir. ग्रुप में आपने भेजा नहीं था तो फिर किसी से लेके आना पड़ा हमको. हाँ, क्योंकि मैंने ज्ञानेंद्र सर को किया, मैंने वहाँ पे सेंड कर ली, दोनों साथ में सेंड कर दिया था, लेकिन वहाँ पे मेरा लिंक जा नहीं रहा था क्योंकि आई एम नॉट एन एडमिन इन दैट ग्रुप.
I'm not in there because only admins can send it. That's what it was. ओके सर। मैंने वो लिंक मैंने ज्ञानेंद्र सर को, शायद ज्ञानेंद्र सर भी लेक्चर्स में कहाँ पे बिजी होंगे, so that's why he could not, and I had to start at 12 o'clock. मैंने वो शुरू कर दिया अभी. Wait a minute. ओके सर। Wait a minute. Students are asking me for this. Let me try it out once again. I can't send it. I can't send it. ठीक है. Okay, students. Yes, everybody's getting down for this. Can I solve it for you all? Can I solve it for you? पूछा गया क्या students? They are asking you is electrical intensity at a point P, which is a midpoint of the hypotenuse. The midpoint है और ये isosceles triangle दिया हुआ है. So join this. Suppose अगर मैंने इसको join कर दिया. Please students, are you all there? Can you hear me properly? Is the audio and video fine with all of you all? यस सर, यस सर। अभी मुझे पूछना है कि at point P के ऊपर what is the resultant electric field intensity होगा, तो तुम क्या बोलोगे? डांस देखना students. यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम, दोनों का चार्ज सेम है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डू एनीबॉडी नोस द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? F upon Q। I want the entire formula. Not F upon Q. यानी 1/4 pi epsilon naught. अब यहाँ पे मीडियम तो नहीं दिया, तो हम वैक्यूम ले सकते हैं. Agreed. सोर्स आएगा अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. Agreed students? क्या ये क्लियर हुआ सबको? Students, this is clear with everybody? Okay. Now अगर मुझे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 1/4 का epsilon Q का आंसर है, and this answer is in Newton Coulomb inverse. ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का रिलेशन है. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो this is the three students. चार्ज यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम है,
यहाँ पे डिस्टेंस r स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस r स्क्वायर, मास सॉरी चार्ज सेम है, तो व्हाट्स गोना हैपन, ये जो चार्ज है ना स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव, अज्यूम के एट पॉइंट P आप देखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो चार्ज है ना, जो सोर्स है वो इसको क्या करेगा सर, उसको एक फोर्स ऑफ रिपल्शन देगा इस तरह, और जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, ध्यान से सुनना, एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट C। वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, एक ही वजह से ये चार्ज को यहाँ इस तरफ फोर्स मिलेगा, वो भी क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे, ऑन P, किसकी वजह से, A। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, क्या दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू C, can I say it's equal to the electric field intensity at point P due to A? Are they equal in magnitude? Are they equal in magnitude, students? क्या ये सही है? Yes, sir. क्यों? क्योंकि सर दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Agreed? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Are they in same Yes, direction? Opposite direction? Are they in same direction or opposite direction? opposite direction. The electric field intensity at a point P due to charge C is equal to minus electric field intensity at point A. We consider equal in magnitude opposite direction. तो दोनों को ऐड कर दो, what is the resultant electric field intensity क्या हो जाएगा? Sir, it's EPC. We consider plus EPA and that will be equal to 0. क्या ये क्लियर हुआ सबको? सर वो लास्ट में आपने क्या लिखा है सर? Electric field intensity at a point P due to charge C is equal in magnitude and opposite in direction. तो electric field intensity at a point P due to A, तो ये जो resultant electric field intensity होगा, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया तो पॉजिटिव साइन आ गया। यस सर। So the total electric field intensity 0 हो जाएगा। Agreed Yes, students? यस सर। तो अभी मुझे बताओ P के ऊपर किसका इफेक्ट रहेगा? सर इन दोनों का तो नलिफाई हो गया, बचा कौन? बी। बचा कौन? B। तो इसके हिसाब से क्या होगा? सर इसके हिसाब से इसका जो फोर्स होगा वो इस तरफ जाएगा, तो अगर फोर्स इस तरफ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से? P due to which charge? B. Do you know the formula for electric field intensity at a point P due to B? Magnitude. क्या तुम निकाल सकते हो? हाँ सर, फॉर्मूला आपने दिया है। क्या है फॉर्मूला? आंसर देखो, 1/4 pi epsilon naught। मीडियम नहीं दिया तो वैक्यूम ले लो। सोर्स यानी कौन सा सोर्स, ये चार्ज आएगा, अब ये तुम्हारा Q हो जाएगा, एग्रीड, अपॉन R स्क्वायर, ये तुम्हारा R हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर ये 45 है, ये 90 हो गया, तो ये भी 45 है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। क्लियर? यस सर। And both these sides are congruent. Suppose that is, if I consider this is 5 centimeter, this is 5 centimeter, equal sides to consider, we can get the answer accordingly. Can you get the side perpendicular, top perpendicular? हाँ sir, sin of 45, sin of 45 क्या होगा students? Sin of 45 equal to the opposite यानी R आ जाएगा upon hypotenuse. Let us say hypotenuse is 5 centimeter consider, तो R का वैल्यू क्या होगा students? R क्या होगा? sin 45 into 5. sin of 45 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? sin of 45 की वैल्यू 1/√2, कहने से 5/√2। ये किसमें आंसर होगा? सेंटीमीटर में। अगर मुझे मीटर में चाहिए तो कहना से 5/√2 into 10⁻⁻² मीटर। क्या ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। Now can I substitute the value over here and get the answer? यस सर। So the electric field intensity at a point P due to charge at point D. Can you tell me what exactly the magnitude of 1/4 pi epsilon naught? किसी को मालूम है? 1/4 pi epsilon naught का magnitude क्या है? 9 into 10 to the power of 9. Agreed? Newton, Coulomb inverse, meter square inverse. हाँ कि ना students? Yes, sir. Into what is the charge? So charge यहाँ पे 2 microcoulomb दिया है। माइक्रोकूलम का मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी कूलम्स? 2 माइक्रोकूलम इज हाउ मेनी कूलम्स स्टूडेंट्स? 10⁻⁶. -6 Minus. -6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 2 into 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r कितना मिला? ये अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं स्टूडेंट्स, देखो क्या आंसर आ रहा है। 5 स्क्वायर का आंसर क्या होगा? 25। √2 का 2 आ जाएगा into 10⁻⁻4 हो जाएगा। एग्रीड?
कैन आई सब्स्टिट्यूट बैक हो भैया? Yes, ये sir. होगा 25 तो ऊपर चला जाएगा into 10 to power of 4 हो जाएगा. Now can you solve and get your answer for electrical intensity? Yes, sir. तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो. अभी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? प्लीज इसका आंसर निकाल के मुझे टैली करके बताना राइट नाउ. छोड़ मत दे उसको. प्लीज डोंट लीव इट जस्ट लाइक दैट. गेट द आंसर एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर. अभी दूसरी बात, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कैसे निकालोगे? फास्ट. हाउ डू यू गेट डायरेक्शन स्टूडेंट्स? डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? ये देखो ना, ये डायरेक्शन का ना अल्फा वेक्टर्स देखा ना तुमने? वेक्टर्स नहीं पढ़ा? ये तो इसको ले लो डायरेक्शन. लेट मी टेक दिस एज अल्फा. तो डायरेक्शन क्या होगा? सो डायरेक्शन ऑफ cos अल्फा. cos अल्फा इज व्हाट? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. स्टूडेंट्स cos अल्फा क्या होगा? एडजेसेंट. एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ? AB. Are you getting it, students? Okay, so it's AB. Hypotenuse we consider in this case. Are you getting it? तो अगर मुझे AB upon hypotenuse we consider is cos 45 we consider. Sorry, BP. BP is the adjacent side, please. Hypotenuse. ये क्या होगा? BP upon hypotenuse is what? AB. मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन. तो what is BP? ये डायरेक्शन हो जाएगा. AB cos alpha. फिर समझ में आ रहा है? Direction of the resultant considered is in the direction of BP, but forming an angle of how much? 45 degrees. With what? With AB. AB कितना दिया है? AB कितना दिया है? How much is AB given to you? 5. So can I say this is 5 upon root 2? Agreed? Agreed, Yes, sir. students? So that's the direction we consider. A direction of it we consider. 5 upon root 2 we take it. This is one direction. Magnitude, can you tell me, students? Is the magnitude clear with everyone? Magnitude क्या मिल रहा है? Can anybody tell me the answer? इसका calculation क्या आंसर आ रहा है? Anyone? .44. Absolutely correct. 1.44 we consider. और अगर तुम करोगे ना स्टूडेंट्स, ये 9 and 10 13 13 minus 6. Agreed? और ये तुम डायरेक्शन अगर तुम पकड़ोगे तो ये होगा तुम्हारा 502 सेंटीमीटर में. इन दैट केस दैट्स सिंपली डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इट. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एवरीबॉडी? ओके. Shall I erase this, students? Yes, sir. So all of you are from foundation batch and foundation new batch or what? All of you are mostly. Yes, sir. Yes, sir. आज के हमारा lectures. So what? Students, Sir, I couldn't hear you. today you have my lectures. Later on also. Oh, yes, sir. So that I'll keep it slightly late. I'll post it in the group 7 o'clock. 7. Already informed the answer, sir. Sir, today you have the first class, not second. Okay. Second class किसका तुम्हारा? Sir, second class SRCH sir का कितना बजे उनका? 6:15. Oh, and mine is 3:30 to 5:30. Yes, sir. Oh, so please once again you confirm it. Both the batches have lecture scheduled at 6:15. Yes, sir. Sir, Foundation Builder and Foundation Builder new have the same timetable. Yes, sir. अच्छा, तो first lecture I may not be able to pick it up. मैं शायद 7 बजे को मुझे फिर ज्ञान सर ने हाँ
Okay, fine. I'll post it in the group. Yes, sir. Will not take place. Okay. Just hold. I'm waiting for the rest of the students. Why they are not coming into it? They are messaging me directly. Still not been posted. The students are. Okay, fine, students. Let's go further right now. Okay, so this was a concept of electric field intensity we consider. Due to the rest of the charts we consider. Now, suppose if I give one more question, listen carefully, students. Suppose if I give you 4 charges at 4 corners of a square. Okay, these are 4 charges are placed at 4 corners of a square. Okay, each of 1 microcoulomb. Okay, I want you to find out the answer to now. I want you to find out the resultant electrostatic force and the resultant electric field on charge at point A. The side of the square A is given to us 1 centimeter. Please solve this. Did you get the answer? I want the resultant electrostatic force and resultant electric field intensity on a charge at point A. Side of the square is 1 centimeter. Is the question clear with everybody? Students, क्या question clear है आप लोगों को? Yes, sir. Okay, fine. Just try to get the answers, please. Yes, Josh, answer. No, sir, by mistake. Okay. Students, are you confident, foundation batch and foundation batch new, are you confident with mechanical properties of fluids? Sir, module is left, sir. Module we have done complete exercise 1, my dear. Exercise 1 का मैंने बहुत सारे not complete. I have picked up many questions. I've done all the index questions. If you try to compare with it, okay. We have done the solve examples. We have done both the exercise. If you look over here, under unsolved exercise, I have done that. I've picked up the questions from exercise 1 also in that case. Okay, many good questions. And today also I was supposed to pick up certain questions from, and these are questions, good questions I'm picking up from modules. I'm picking up good questions from module itself, my dear. Try to compare, try to figure it out properly. Look into it very carefully. If you carefully look into it, you will come across the questions also over there. Next lecture, I'll pick up a few more questions onto that, and then we'll start with properties of matter. Did you look into the module, students? Did you compare the questions what I had thrown at the all with the module part of it? Josh? No, sir, I didn't compare it yet. You did? Just No, try sir. to look into it now. Yes, sir, I'll look into it, sir. You were almost maximum solve examples we have cracked it. Maximum solve examples I have tried to cater it in that case. There are 2 unsolved exercises also. Okay, both the unsolved exercise I have picked it up and I've done it. I've gone for exercise 1 also, and first 10 problems which are good ones of exercise 1. वही अच्छे problems है, पीछे वाले easy है. I picked up all 10 questions we consider in that case.
तो भी शायद फर्स्ट वाला नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे किए हैं, एंड आई एम गोइंग टू पिक अप सम मोर क्वेश्चंस लेटर ऑन, and different types of questions we have put across. Yes, anybody can go and answer for this? Students. Students, how to go about this also? Formula क्या है force का? Force का formula क्या है? So it's 1 upon 4 pi epsilon naught. K is 1 itself only because it's vacuum. Capital Q, small q upon r square आएगा. Electric field intensity का formula क्या है? 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q by r square आएगा. ये न्यूटन में आएगा और ये न्यूटन कोलोम्बस आएगा. अभी हम फोर्स के ऊपर जाते हैं. पूछा क्या है? एट पॉइंट पे, यानी इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो किसकी वजह से होगा? ये तीनों चार्जेस की वजह से. और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड भी आएगा. सिर्फ फर्क क्या होगा? ये जो आंसर मिलेगा ना स्टूडेंट, उसको सिर्फ क्यू से डिवाइड करो, इफेक्ट वाला चार्ज से डिवाइड करो, तो वो तुम्हें ई मिल जाएगा. और यहाँ पे देखो, अगर मैं ये लेता हूँ और ये पॉजिटिव है चार्ज, इफ नेचर नहीं दिया उसका मतलब ये पॉजिटिव. आई गेटिंग इट. दिस आल्सो 1 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव. ये माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव. ये 1 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव हो गया. Side is 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter. What exactly the length of the diagonal? Length of diagonal we consider, so diagonal of the square we consider is what? Side root 2. So diagonal is equal to 1 root 2, that is equal to root 2 centimeter. That is root 2 into 10 raised to minus 2 meter. And this side we consider is equal to 1 into 10 raised to minus 2 meter. Agreed that I can consider as R over here. Is this much clear with everyone? स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ सबको? यस सर. अभी देखो, अभी मैं ए बी सी डी की जगह पे मैं इनको भी नाम दे देता हूँ. इसको मैं लेता हूँ 1, इसको मैं देता हूँ 2, इसको मैं देता हूँ 3 और इसको मैं देता हूँ 4, इजी करने के लिए. प्लीज पे अटेंशन नाउ. कैन आई से देयर इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2, तो उसका डायरेक्शन इस तरफ आएगा, है ना? तो कैन आई से दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2, तो इसको मैं 2 लिखूंगा मैं. फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/4, सर ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये इसको रिपल करेगा क्योंकि ये मेरा सोर्स है, इसके ऊपर इफेक्ट होगा. तो कैसे दिस फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/4. एग्रीड. सो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय 2, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय 4. इन दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स? क्या फॉर्म हो रहा है? व्हाट इज एंगल फॉर्म बिटवीन द टू फोर्सेस? 90 डिग्री. तो कैन आई फाइंड आउट द रिजल्टेंट? कैन आई फाइंड आउट द रिजल्टेंट? हां सर, रिजल्टेंट आ गया तुम्हारा इन दोनों का. ये क्या होगा? f2 square plus f4 square plus 2 f4 cos of 90, and cos of 90 we consider as cos of 90 we consider will be 0 students. Cos of 90 we consider will be equal to 0. Agreed students? Agreed. तो ये क्या होगा तुम्हारा? ये क्या होगा सर? अंडर रूट क्या हो जाएगा सर? अंडर रूट f2, ये f रिजल्टेंट है, सो अंडर रूट f2 स्क्वायर प्लस f4 स्क्वायर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? वेक्टर एडिशन मेथड्स की हिसाब से लिया पैरेललोग्राम. यस सर. अभी मुझे बताओ क्या फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस f2 एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1 and force exerted on, are they equal in magnitude? Force exerted on 1/2 and force exerted on 1/4, are they equal in magnitude? हाँ या ना? Force exerted on 1/2 and force exerted on 1/4, are they equal in magnitude? हाँ या ना? Yes. क्यों? हमने फॉर्मूला दिया ना सर. सोर्स दोनों का 1 माइक्रोकूलम है, Q वो भी 1 है,
डिस्टेंस सर ये तो कॉम्पोनेंट आ रहा है, अरे हाँ सर ये दोनों इक्वल है, तो कहने से रिजल्टेंट क्या होगा, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस, ये क्या होगा, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ f2 द होल स्क्वायर, क्योंकि f2 एंड f4 आर वन इन द सेम, अगर मैं रूट निकालूं तो व्हाट एग्जैक्टली रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स f2। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ Yes, स्टूडेंट? sir. अभी इसका डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, ध्यान से देखना, तो बोलेंगे सर इन दोनों का रिजल्टेंट शुड दिस वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इसका रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, समझ आ रहा है, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू दीस टू चार्जेस इज √2 टाइम्स F2, एग्रीड, इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। लेकिन अभी तक हम लोग ने फोर्स इसके ऊपर निकाला किसकी वजह से, ये तो चार्जेस की वजह से, ये तो बेचारा बचा हुआ ना, ये तो रो रहा है, पर भाई तुमने तो अपना फोर्स लगा दिया, व्हाट अबाउट मी, तो देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो होगा क्या, ये इसको रिपेल करेगा, एग्रीड, क्योंकि दिस इज अ सोर्स, दिस इज अ सोर्स एंड द इफेक्ट इज हैपनिंग ऑन टू इट। तो मुझे बताओ इनका डायरेक्शन किस तरफ होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन किस तरफ होगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/3, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, Sir, outwards. ऑफ कोर्स अलोंग द डायगोनल ओनली, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सर ये जो फोर्स होगा वो इसी तरफ जाएगा, तो यानी देखो दोनों वेक्टर्स अभी क्या होगा, एक डायरेक्शन में होगा, कैन यू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन दिस, हां सर, फोर्स एक्सर्टेड, ध्यान से सुनना, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/3 क्या होगा, क्या होगा सर, ये तो कांस्टेंट होगा, कैपिटल Q स्मॉल q, व्हाट इज r स्क्वायर, डायगोनल क्या है, डायगोनल क्या है, सो दिस इज √2 into 10 - 2 मीटर, ये तुम्हारा r हो जाएगा, सो ये क्या होगा, सर ये कॉलम्स कांस्टेंट लिख लो, इसकी जगह पे मैंने c लिख दिया, कॉलम्स कांस्टेंट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्रीड, एंड दिस आंसर विल बी इनटू व्हाट, इनटू r स्क्वायर, आंसर दिस आंसर विल बी न्यूटन, क्या ये क्लियर हुआ एवरीबॉडी? Yes, sir. अभी अभी बताओ अभी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, अभी रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो बोलेगा सर पहला वाला का ये फोर्स है जो √2 टाइम्स आ रहा है, दूसरे वाले का ब्लैकिंग के ये भी आ रहा है, क्या दोनों वेक्टर्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, Yes, sir. व्हाट इज द एंगल कॉम्ब बिटवीन देम, 0, cos ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1. तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, Add हो जाए. सिंपली ऐड, यानी रिजल्टेंट क्या होगा, फाइनल रिजल्टेंट फोर्स, फाइनल रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ध्यान से सुनना, √2 टाइम्स F2 प्लस फोर्स एक्सेट्रा 1/3 का स्क्वायर करना, यानी ये क्या होगा, ध्यान से देखो, √2 टाइम्स व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड, ये रिजल्टेंट F2 क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई नहीं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फार्मूला क्या है सर, कूलम्ब्स कांस्टेंट ही आएगा, सोर्स क्या है सर 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁶, इफेक्ट सर वो भी 10⁻⁶ है, एग्रीड, अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस क्या होगा 1 सेंटीमीटर, सो दैट इज 10⁻², तो स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 होगा, ये पहला वाला का आंसर, इसका आंसर क्या होगा, फिर इसका आपने लिखा हुआ है यहाँ पे c आएगा, ये q कितना है सर, ये q 1 माइक्रोकूलम, ये भी 1 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁶ into 10⁻⁶ आ गया, agreed, upon square of this √2 into 10⁻² the whole square. Can you add both these and get the answer for resultant, students? Sir, F13 is the force on 1/3, right? Of course, absolutely correct. Okay. Yes. And the formula is what? C capital Q small q upon r square. What is capital Q? This is a source. Effect ये वाला है, तो दोनों का मैंने चार्जेस लिख दिया है, 10⁻⁶, 10⁻⁶, ये कॉलम्स कांस्टेंट, what is the distance between these two, length of the diagonal, what is the side was given to us 1, diagonal is how much, side √2, so that is √2 but that is in centimeter, I convert into meter, square करोगे तो क्या आंसर होगा, 2 into 10⁻⁴. Now can you solve this part, simply addition, c को बाहर निकाल के, that is the resultant force. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Sir, अभी वो C पे हाँ। के पास वो +3 क्या है सर? ये मैंने इजी बनाने, मैंने ABCD की जगह पे मैंने पॉइंट्स दिया है, हेलो, ये ए की जगह पे मैंने, इसलिए तो मैंने ना फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2,
4 6 7 1 by 4 ये Okay, easy yes, sir. अल्फाबेट्स ABCD दिया है लेकिन मैंने 1 2 3 4 ले लिया Yes sir, वो Make it more इसलिए easier. कंफ्यूज हो गया था सर. अरे यूनिट कहाँ लिखा है पीछे माय डियर मैंने हाँ, थोड़ी sir. यूनिट लिखा है मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है Yes sir. everybody are all the students who are into the meeting okay all 31 students okay Gazafar Himanshu Josh those who respond okay Kunj Nedip Nyarika Rishi Ruksar Sar are you understanding yes sir. Yes, sir. Okay Gazafar there are two people who are entered in your name Gazafar two devices are there No, sir. One only. तो कौन सा तेरा पर्पल वाला है कि येलो वाला है Sir, purple one. तो येलो वाले को निकाल देता हूँ मैं तो येलो का तो आवाज आ रहा है तो आप बोल रहा तो येलो वाला आ रहा है Sir, मेरे को पर्पल दिखा रहा था. मुझे येलो दिखाई दे रहा है हाँ पर्पल वाला निकल गया अभी देखा see somebody is there who's taking your name and coming into it very smart people अब येलो ही okay अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स अगर मुझे स्टूडेंट जान सुना अगर मुझे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए रिजल्ट तो कैसे करोगे Sir, can you repeat, sir? I want to find out resultant electrical intensity at 1 due to the rest of the charges. Then what will do? Sir, resultant force upon unit charge. Now, of course, यानी जो आंसर मिला कहने से डायरेक्शन वही रहने वाला है सिर्फ तुम्हारा अभी देखो ये वाला जो फोर्स है ना ये तुम्हें जो मिला ना इसके ऊपर कौन सा इफेक्ट अपॉन 10⁻⁻⁶ ले लेना बस क्योंकि E इज F by Q आएगा E इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला डिवाइड बाय जो इफेक्ट है यानी अगर सपोज ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स अगर इसके ऊपर मैंने स्मॉल q ले लिया तो वो क्या बन गया मेरा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बन गया समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स वैसे ही यहाँ पे अगर मैंने स्मॉल q ऊपर नीचे ले लिया तो q कैंसिल हो गया मेरा तो यहाँ पे मुझे एक q लेने की जरूरत नहीं है क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी q नहीं आएगा विदाउट q जो तुम्हारा आंसर आएगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हो जाएगा इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स Yes sir. But direction, yes, it's in the direction outwards we consider. Agreed? Yes sir. Can I erase this now? No sir, 1 minute. Okay. Please write on correct information. Huh? Don't put in anything incorrect. नहीं समझ में आता तो वापस पूछो students. Don't take it blindly. Okay, Shara has given the answer. Along CA. Result. Yes, students, can I erase it? Okay, students.
Now let's go further actually. I told you about electrical intensity, I told you about electrostatic force also. Okay, now let us, I told you about electric dipole, I told you about electric dipole moment, and I told you about polar molecules, non-polar molecules. I told you electrical intensity inside a conductor is always, metallic conductor is 0. Okay, for an insulator, yes, field lines can pass through it, which I made it very, very clear. I must have also told you that electric field lines always originate from positive and they move towards the negative. They originate perpendicularly, they terminate perpendicularly. They do not form a closed loop. No field lines intersect each other. Is that clear? So I made it very clear in this case. Now, when you move further, students with this field, I must have told you about, did I tell you about uniform electric field, non-uniform electric field? Students, field lines which are parallel to each other are called as uniform. Agar suppose मैंने glass rod लिया, let me put forward this way, okay? Let me try to put forward the same thing in terms of an example, okay? Suppose the next concept which I'm trying to put forward is electric flux, students. अभी जो electric flux के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं students, ये है क्या? What exactly electric flux? So students, electric flux is a scalar quantity. And this part, many of you all must have known to it in your vectors, when you must have done vectors. Electric flux, students, is actually the number of electric field lines. The number of electric field lines passing perpendicularly through a given surface. The formula for this is E bar dot A bar. यानी ये है क्या? तो बोलोगे सर ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, तो तुरंत तुम्हारा कंसेप्ट होगा सर डॉट प्रोडक्ट है, उसका मतलब ये मैं E cos theta into A भी लिख सकता हूँ. Why not? Can I run EA cos theta also? Why not? यानी यहाँ पे हमारा कंपोनेंट क्या होगा? Cos theta, E cos theta in the direction of A and A cos theta in the direction of E. Now we are trying to understand the concept of electric flux. Electric flux का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो students. Now for example, if I have to consider, मैंने एक ग्लास रॉड लिया students, okay? और यहाँ पे इस ग्लास रॉड के ऊपर मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है. Okay, I rubbed it with silk and the charge distributed on glass is positive. Okay, this is positive charge which is distributed on the glass. And there is another student जिसने same glass rod लिया है, same length, same thickness. उसने भी रब किया है, but glass when rubbed with silk we consider. लेकिन उसने ज़्यादा रब किया है for a longer time, longer days, longer time. तो यहाँ पे जो charge induce होगा comparatively ज़्यादा होगा students. क्या ये क्लियर हुआ? स्टूडेंट ये क्लियर हुआ? दोनों ग्लास रॉड है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, और ये चार्जेस दोनों तरफ होंगे स्टूडेंट्स. मैं सिर्फ एक तरफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यानी जो चीज यहाँ पे हो रहा है ना स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी वैसा ही रहेगा. यानी अगर कोई टीचर तुम्हें इस तरफ दिखाता है तो उसका मतलब यहाँ पे भी वही इफेक्ट होगा. मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ. अभी तुम देखो ना कि ये पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने बोला था हमेशा परपेंडिकुलरली आ रहा है, हमेशा परपेंडिकुलरली आ रहा है. देखो परपेंडिकुलरली आ रहा है, ये है परपेंडिकुलरली आ रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यहाँ पे सर यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर, दे कम आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. अगर तुम देखो these are the direction of electric field, they are coming out from the positive charge, they all parallel to each other, all parallel to each other students. लेकिन दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे तो क्या है, क्या दिखाई देगा तुम्हें? लेंथ ऑफ द ग्लास रॉड इज सेम, सिर्फ फर्क क्या है? यहाँ पे ज्यादा चार्ज इंड्यूस है, यहाँ पे कम चार्ज इंड्यूस है. तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, कहाँ पे तुम्हारा फील्ड सबसे पहले यूनिफॉर्म है? ये बताओ. फर्स्ट केस या सेकंड केस? ये तुम्हारा फर्स्ट डायग्राम और ये सेकंड डायग्राम. कहाँ पे तुम्हारा फील्ड यूनिफॉर्म है? दोनों में. दोनों में यूनिफॉर्म है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कहाँ पे ज्यादा है? सेकंड. सेकंड में. क्यों स्ट्रॉन्ग ज्यादा है? The field line are closer. यस, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना. आई गेट इट. सो अगर मैंने रेगुलर शेप बॉडीज दिया तो फील्ड लाइन भी कंसीडर. अभी फॉर एग्जांपल यानी ये हुआ मेरा यूनिफॉर्म एक्सप्लोर, और ये सिर्फ क्या होगा? यूनिफॉर्म. हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग लाते हैं. अभी ध्यान से सुनना. अभी फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक पॉजिटिव चार्ज,
सपोज एक मैंने चार्ज किया लिया है, पॉजिटिव चार्ज किया, और अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने अज्यूम किया है कि उसको मैं एक सराउंडिंग में रखता हूँ, ओके, एक स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर मैं सोचो कि मैंने रखा हुआ है। तो अगर चार्ज यहाँ पे है, ध्यान से देखना, इसका रेडियस इज r, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, can I assume that the charge can be considered on the surface of the conductor? बोला हाँ सर, बिकॉज चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। ध्यान से सुनना, चार्ज आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, फील्ड लाइंस वहां से बाहर तो आ ही रहा है। अगर मैंने सिंगल पॉजिटिव चार्ज दिया स्टूडेंट्स, एक अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज दिया तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी? वन एंड ओनली वन फील्ड लाइन, वन एंड ओनली वन फील्ड लाइन कैन कम आउट फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर मैंने कंस्ट्रक्ट किया है स्फेरिकल कंडक्टर अराउंडेड, तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ? तुम ये अज्यूम कर सकते हो कि सर अगर आपका चार्ज सेंटर में है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि पॉइंट पी पे है यहाँ पे। अगर सपोज मुझे ये नहीं लेना है तो सर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो और वो पॉइंट P1 पकड़ लो। तो हम यहाँ पे भी अज्यूम कर सकते हो, हाँ अज्यूम कर सकते हो, और उसको मैं पॉइंट P2 भी ले रहा हूँ। अगर सपोज मैं P के हिसाब से देखूँ ना, P के हिसाब से देखो तो देखो मेरा फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है। अगर मैं P1 के हिसाब से देखूँ तो मेरा फील्ड लाइन इस तरफ जा रहा है, P2 के हिसाब से देखो तो मेरा फील्ड लाइन इस तरफ जा रहा है। Is the field going outwards? Yes, it's going certainly outwards. यानी assumption क्या है? इस assumption है कि आपने चार्ज को सरफेस के ऊपर लिया, लेकिन जैसे जैसे लाइंस दूर जाती रहेगी स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सर फील्ड इज कंपैरेटिवली बिकमिंग वीकर। अगर सपोज मैंने दो चार्ज को कंसीडर किया सरफेस के ऊपर, ध्यान से सुनना, ये तीन चार्ज को सरफेस के ऊपर कंसीडर किया है, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। ये दो चार्ज को पकड़ लो, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ मैं। ये दो चार्ज को पकड़ लो स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर सपोज मैं एक रीजन सिलेक्ट करता हूँ, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, और कुछ एक रीजन में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हारा रीजन 1 है, ये तुम्हारा रीजन 2 है, और चार्जेस को हम अज्यूम करके कि दोनों सरफेस पे है, और फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है। मेरा क्वेश्चन ये है, कहाँ पे तुम्हें फील्ड स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी? कहाँ पे फील्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर? 1 या 2? 1. 1, क्योंकि ये फील्ड लाइंस क्लोज है, ये फील्ड लाइंस दूर है, बट आर दे गो रेडियली आउटवर्ड्स? यस, दे आर गोइंग रेडियली आउटवर्ड्स। यानी फॉर अ पॉजिटिव चार्ज दे आर गोइंग रेडियली आउटवर्ड्स। वही अगर नेगेटिव चार्ज होता, वही स्टूडेंट्स अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? द फील्ड लाइंस आर गोइंग टू कम रेडियली इनवर्ड्स। This is how the field is going to come radially inwards, we consider. So for a unit positive charge, the field is outwards. For a unit negative charge, the field is inwards. Direction of electric field क्या होता है? Direction of electric field क्या होता है? So simple. अगर suppose मैं कोई point लेता हूँ, ये field हमें दिखाई नहीं देती, ये imaginary है। अगर मैं यहाँ पे एक tangent draw करूँ, यहाँ पे अगर मैं एक tangent draw करूँ, यहाँ पे मैं एक tangent draw करूँ, यहाँ पे मैं एक tangent draw करूँ, तो क्या दिखाता है? So that always shows the direction of electric field. It always shows the direction of electric field. A tangent drawn at any point, what exactly determines direction of electric field at that point? इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपोथेटिकल है, दिखाई देती नहीं है, लेकिन उसका प्रेजेंस पता चलता है। कैसे पता चलता है? कोई चार्ज इसके विसिनिटी में लेके आओ, कोई चार्ज उसके रीजन में लेके आओ, अगर तुम उसके रीजन में लेके आते हो, या तो वो अट्रैक्ट होगा या तो वो रिपेल होगा। अगर मेरा सोर्स पॉजिटिव है, अगर मेरा सोर्स पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज मैंने पॉजिटिव उसके फील्ड में लेके आया तो उसको रिपल्शन मिलेगा, लेकिन अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लेके आया तो उसको अट्रैक्शन मिलेगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इतना क्लियर हुआ? अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बता दिया, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बता दिया, कि वीक का वीक कहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कहाँ पे, ये भी बता दिया। अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जा रहे हैं। अभी ध्यान से सुनना, अभी ये हम डायग्राम पकड़ रहे हैं, इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस ले रहा हूँ, तो मैंने ज्यादा चार्ज ले लिया, यहाँ पे ज्यादा चार्ज ले लिया, तो ये होगा यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग दोनों हो गए। ये फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, ये भी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, ये फील्ड लाइंस। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, सपोज अगर मैंने ये ग्लास रॉड को एक कंटेनर के अंदर रखा, ओके, अ कंडक्टिंग मटेरियल, और उसका जो सरफेस एरिया है, हम कीपिंग दिस मैनर, ये कंडक्टिंग मटेरियल का सरफेस एरिया ऐसे ऐसे रखा है मैंने, सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल दिस मैनर। इसको जो एक कंटेनर रखा है,
जिसमें ये इसका एक साइड है। फॉर एग्जांपल एक क्यूबिकल ब्लॉक मेरा, अभी इसको मैं पूरा क्लोज करूं तो मेरा डायग्राम ऐसा होगा स्टूडेंट। So, sir, the positive rod is inside the cube. Of course, inside this particular. Agreed? Yes sir. समझ में आ रहा है? Yes. This is clear? अभी इफेक्ट दोनों तरफ हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसी को दिखा रहा हूँ। ये तुम्हारा अभी एरिया है, that's what we consider, and this is a conducting material we consider। तो क्या होगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। सर ये जो है ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो उसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं, फेयर इनफ। क्योंकि सर आपने अगर इसको अगर रेक्टेंगल पीस लिया होगा तो लेंथ इन ब्रेथ होगा, ये अगर स्क्वायर होगा तो एल स्क्वायर आ जाएगा, ये अगर सिलिंड्रिकल रखा तो पाई आर स्क्वायर होगा। यानी डिफरेंट शेप्स के हिसाब से आप उसका एरिया निकाल सकते हो, क्यों नहीं। अभी देखो ये जो अगर मैंने सरफेस लिया है, ये सरफेस का एरिया वेक्टर क्या दिखाता है, सिर्फ एरिया वेक्टर दिखाता है डायरेक्शन of a particular field which has to come out to that particular part of it। यानी अगर मैं कोई भी नॉर्मल, ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई नॉर्मल ड्रॉ करता हूं from the surface area of a given face, from the surface area of a given face of a conductor, that is called as my area vector, and that area vector simply shows direction। मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड वो सरफेस के ऊपर डिपेंड है भाई। रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, स्क्वायर होगा तो साइड स्क्वायर होगा, सर्कुलर पोर्शन होगा तो पाई आर स्क्वायर होगा। एंड एनी परपेंडिकुलर, स्टूडेंट दैट्स इट, सुनिए तो इमेजिनरी ड्रॉ करो, एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ अ गिवन वी कंसीडर, ऑफ अ कंटेनर वी कंसीडर, दैट इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। तो इट डिपेंड्स ऑन टू whom सर, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस, कैसे सरफेस अलाइन किया है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ये सरफेस है, तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर रख दिया तो ये क्या हो गया, ये एरिया वेक्टर। वो क्या दिखाता है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया पार्ट, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एसोसिएटेड विद द एरिया। यानी ध्यान से सुनना, मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन करना है स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन करना है जो सरफेस से बाहर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, वेक्टर है। तो उस वेक्टर को कंपेयर करने के लिए मैं एरिया को अपने फुर्सत की वजह से, आई ट्राई टू कंसीडर एज एन एरिया वेक्टर, अपनी सहूलत की वजह से मैं उसको एरिया वेक्टर ले रहा हूं। यानी स्टूडेंट्स एरिया है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अपने कंफर्ट के टाइम पे यू कैन कंसीडर एट टाइम्स टू बिहेव एज अ वेक्टर आल्सो। तो तुम बोलोगे सर चलो सरफेस ऐसा है, आपने इसको एरिया वेक्टर ले लिया। अगर सपोज आपका सरफेस ऐसा रहा तो परपेंडिकुलर ऐसे बनाना, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हो गया। अगर आपका सरफेस ऐसा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। यानी जहां पे तुम सरफेस देखो और वहां पे तुमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, वो तुम्हारा क्या हो गया, एरिया वेक्टर। अरे हाँ सर, ये कांसेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर में। प्रेशर का जब भी कांसेप्ट आया था तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया पे कंसीडर। और अगर फोर्स नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस एरिया नहीं है, तो क्या होगा, हम कंपोनेंट लेते थे, एफ कॉस थीटा लेते थे। तो एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे भी क्या हो रहा है। सिर्फ अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, फिश बनता है सुनना। अभी ये देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लीज, अभी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लीज, कैन आई से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द ब्लू वे, is this electric field line, is it also coming out perpendicular from the thin surface? Yes, sir. How is E and A in this case? Sir, E and A both of them are parallel to each other. So now if I keep the surface in this manner, do you see maximum lines coming out? Sir, ये देखो ना, ये आ रहा है सर, ये एक लाइन आया, ये कंटिन्यू करो, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन, ये छठवीं लाइन। अरे हाँ सर, ये तो मैक्सिमम लाइन से कमिंग आउट। वो क्या है तुम्हारा, फ्लक्स का डेफिनेशन मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally perpendicularly from a given phase। तो तुम्हारा फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा सर, पैरेलल है ना, तो cos of 0 क्या होगा, cos of 0 1 होगा। यानी थीटा है क्या स्टूडेंट्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
and the area vector. तो तुम बोलोगे सर चलो फाइन, ये यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम हुआ यानी यहाँ पे तुम्हारा फ्लक्स क्या हुआ सर, यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फॉर्मूला क्या होगा सिंपली E into A होगा क्योंकि आपका cos of 0 मान आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर कोई स्टूडेंट इसी सर्फेस एरिया को अगर सपोज उसका पोजीशन चेंज कर दे, ध्यान से देखना, अभी दूसरी डायग्राम में जा रहा हूँ, सेम चीज को यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। अगर सपोज किसी ने कंटेनर को ऐसा रखा है, देखो अभी मेरा बॉक्स ऐसा है, प्लीज स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। If I say that the container is in this manner, agreed? Now students see, how's the face area? How's the face area? So the face area is always perpendicular to the surface. हमारा face area हो जाएगा। क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये देखो, ये तुम्हारा फेस अभी ऐसे ले लिया मैंने, agreed? तो ये क्या होगा सर, ये होगा मेरा एरिया वेक्टर। अभी मैंने क्या किया, मैंने कंटेनर को टिल्ट कर दिया। अभी देखो फील्ड लाइन कैसे जा रही है सर, ये फील्ड लाइन, हाँ सर ये तो पास हो रही है, ये भी पास हो रही है, ये भी पास हो रही है, ये भी पास हो रही है, सर ये नहीं, शायद ये नीचे से नहीं होगी, यानी यहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा जा रहा है कम जा रहा है, और फील्ड लाइन आते कोई मोर और लेस जा रहा है। दैट मींस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and the area vector are in the same direction? नहीं सर, they are forming an angle theta. अगर मुझे मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए, ध्यान से सुनना, मुझे मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए, मैक्सिमम फील्ड लाइंस को बाहर निकालना है, तो दो पॉसिबिलिटी, सर ऐसा करो ना, या तो कंटेनर को सीधा कर दो, है ना, कंटेनर को सीधा कर दो। कंटेनर को सीधा करना का मतलब क्या हुआ सर, ड्रॉप E परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, EA cos थीटा। दूसरा स्टूडेंट बोलेगा सर मेरे को कंटेनर सीधा नहीं करना है, आप ग्लास रोड को टिल्ट कर दो ना, कंटेनर को मेरे को नहीं करना है, मेरी मर्जी। तो ग्लास रोड को भाई टिल्ट करो, तो ग्लास रोड को टिल्ट करोगे तो उसका मतलब क्या किया तुमने E को ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, तो उसका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, E cos थीटा। Am I getting a component cos theta in this? स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. This is what we call as your electric flux we consider. So electric flux is simply denoted by variable phi, phi. Electric flux is defined as number of electric field lines passing perpendicularly through the given surface, students. It's simply a dot product of vector P and A we consider. The component views we consider is cos theta we consider. What are the ways you can write on? Either you can write E cos theta to it or E cos theta we consider. What about area vector? Area vector is always a vector normal to the surface of a given conductor we consider. When exactly the flux is maximum? When your electrical intensity and the area vector are parallel to each other. अभी देखो ध्यान से देखना, ये parallel है तो flux is maximum. When is flux minimum? ध्यान से देखना, अभी देखो ऊपर वाला टॉप सरफेस देखो, टॉप सरफेस, ये भी तो फेस है ना, ये भी तो कंडक्टर है, रॉड ऐसे रखा है, लेकिन ये जो फेस देख रहे हो उसका एरिया वेक्टर किस तरफ जा रहा है सर, आपने बोला परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, चलो मैंने ड्रॉ कर दिया Sir, when theta will be 90. हाँ थीटा 90 हो जाएगा। अब देखो E इस तरफ जा रहा है, लेकिन E का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है सर, E का डायरेक्शन तो ऐसे जा रहा है, तो हाउ इज E and A, हाउ इज E and A, फिर यहाँ पे तो 90 आ रहा है, तो अगर cos of 90 आ गया तो cos of 90 क्या बन गया, 0। तो क्या फ्लक्स ऊपर से पास होगा नहीं, क्योंकि सर वहाँ पे चार्ज है ही नहीं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो जहाँ पे चार्ज पास होगा वहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अभी देखो, अभी अगर मुझे यूनिट चाहिए तो कैसे निकालोगे यूनिट सर, इजी, E का आपको मालूम है, A का मालूम है, तो फ्लक्स का मिल गया। या तो दो पॉसिबिलिटीज है, E को आप न्यूटन कूलम्ब इनवर्स लिखो और एरिया मीटर स्क्वायर रखें, सर ये 1 यूनिट होगा, व्हाई नॉट। दूसरा सर आपने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव dV/dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव dV/dr है, तो वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर करते हैं, ऐसे वोल्ट मीटर, ये दूसरा यूनिट होगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. दूसरी बात, flux is equal to E dot A, so can I say what is the formula for E? So it's flux per unit area, agreed? Of course your unit is Newton coulomb inverse होगी। इसको तुम क्या नाम दोगे? माइंड यू, जब E is equal to flux per unit area होगा उसका मतलब क्या, मतलब है ये क्या था, ध्यान से सुनना, सी द डिफरेंस।
जब भी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन बोला तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस। और स्टूडेंट्स मेरा सरफेस ये पूरा आता है, लेकिन वही अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया बोल दूं मैं, तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अभी मेरा जो ई है उसको प्रोनाउंस क्या करूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। उसका यूनिट क्या होगा? एग्जैक्टली टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया है। उसका मतलब अगर मैंने पूरे एरिया ना सोचना, अगर मैं बोला एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर स्क्वायर में से 200 लाइन बाहर आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, 10 मीटर स्क्वायर में से 200 लाइंस आर पासिंग थ्रू इट। तो कैन यू टेल मी इन 1 मीटर स्क्वायर हाउ मेनी आर पासिंग थ्रू इट? तुम बोलो सर 10 मीटर स्क्वायर में 200, 1 मीटर में कितना? तो 200 अपॉन 10 वी कंसीडर हाउ मेनी लाइंस आर गोइंग टू पास थ्रू? 20. यस, वो हुआ पर यूनिट एरिया। वो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। Is this much clear with everyone? Yes. Yes, sir. Okay. Now this concept we are trying to pick it up in order to understand our Gauss's theorem. Is that clear? We are trying to pick up the concept of Gauss's theorem. Can you clear everyone? Yes, sir. Where is the students? Sir, can you explain that last diagram? This one? No, sir, below that. This? Yes, sir. This is I've taken is that is if I take a charge over here, I can assume the charge to be on the surface. And if I try to place charge on the surface, the field lines go out radially outwards. I've selected two regions in that particular region of the fields. As you are closer to the charge, the field is stronger, we consider. As you go away from the charge, the field is comparatively weaker because E is inversely proportional to what? R square. Graph is exponential. Agreed? Yes, sir. क्या मैं erase कर सकता हूँ? Yes, sir. Okay, students, what I'll do it is I'll go for the concept of torque. After this, of course, I need to go for Gauss's theorem, but the other part students are not there into it. Okay, so I'll try to keep the Gauss's theorem together. Now see Ian is now entering. Ithan, can you unmute yourself, Ithan? Ithan, are you there? Can you unmute yourself? Which batch are you from? Ithan, can you unmute yourself? Which batch are you from? See, this is what the problem is. Ithan, tell me, कौन से batch से हो तुम? Yes, Ithan. Which batch are you from? I'm from the Biroli batch. Which one? Your voice is not fine. Sharad Chauhan has also entered right now. I don't know what is happening. Okay, students, let's. मैं एक ये concept बताऊँ जो easy है students. और next lecture में I'll try to pick up the Gauss's theorem. Electric field intensity के derivation करने के बाद में we'll go for Gauss's theorem. क्योंकि ये theorem बहुत important है student.
So I want the entire class to be present in that case. अगर मैं आज complete कर दूंगा, then again we'll have a problem in the next lectures. So I'll pick up a simple concept. We'll go for torque acting on an electric dipole. I'll just give the formula for the electric dipole. Students, अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है तो मैंने क्या बोला था? Electric dipole का मतलब क्या? Two charges equal in magnitude, Opposite in nature. Okay, and at a finite distance from each other. हम आगे continue कर रहे हैं, लेकिन ये easy concept है इसलिए तुम्हें easy तरह से आ जाएगा. Okay, so equal in magnitude, opposite in nature भी consider. इसको मैं लूँगा -2 और भी लूँगा +3. दोनों का बीच में distance जो है हम keeping it as 12. Agreed? ये है मेरा electric dipole. Students, the line passing to the centers of the dipole, ये जो line pass हो रही है to the center of the dipole, इसको हम बोलेंगे क्या? Electric axis. And a perpendicular bisector of the electric axis. And ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा LL. ये जो perpendicular bisector है, okay, is called as electric equator. इसको हम बोलेंगे एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे इक्वेटर. यस शिवा. अगर सपोज मैंने बोला कि व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो मोमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? टर्निंग इफेक्ट. द बॉडी अंडर द एंटायर सिस्टम कैन अंडरगो अ टर्निंग इफेक्ट व्हेन यू प्लेस इट इनटू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फॉर्मूला मैंने दिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड चिराग हैज पोस्टेड द आंसर आल्सो. Electric dipole moment is given by the formula Q into 2L students. यानी ये है क्या? एक वेक्टर है students. Electric dipole moment एक वेक्टर है. उसका फॉर्मूला क्या है सर? चार्ज into distance between the two charges. और ध्यान से सुना, ये दो जो चार्ज है ना students, जो चार्ज है ना, ये दोनों equal in magnitude है. मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन opposite in nature. एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. जैसे कि मैंने बताया था वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, अगर तुम वाटर मॉलिक्यूल लेते हो, सपोज अगर तुमने ऑक्सीजन लिया है और ये दो हाइड्रोजन लिया है, तो इनका तुम सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पे पकड़ सकते हो. एग्रीड? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये सेंट्रल चार्ज +3 होगा. ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है. एग्रीड? नेक्स्ट उसको चार्ज क्या होगा? -3 हो जाएगा. ये एंगल कितना? 105. तो देखो ये जो पॉजिटिव 2 देखते हो ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2. ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस है. तो ये तुम्हारा हो गया +2 और ये तुम्हारा होगा -2. तो ये क्या फॉर्म हो गया सर? ये एक डाइपोल हो गया, which are very well separated and these are polar molecules. जिसके सेंटर्स वेरी वेल डिफाइंड है, सेपरेट, इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा सर? उनका दोनों कॉन्करेंट होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड लेता हूँ, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड भी कंसीडर, वो लीनियर है, उनका सेंटर्स भी कंसीडर कॉन्करेंट, तो वो नॉन पोलर हो गया. ये पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल. नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज Q into 2L. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर ये वेक्टर है तो इसको डायरेक्शन होगा. स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगा? 3-1. What is the direction of electric dipole moment, students? From negative to positive. कहाँ पे होगा? Actually from negative to positive होगा. Agreed? Of course. ये कहाँ से होगा? So negative charge. यानी it's from negative to positive. Agreed? ये है electric dipole moment का direction. Agreed? दूसरा, उसका यूनिट क्या होगा? What is the unit we consider this? What is the unit of electric dipole moment? तुम क्या बोलोगे? सर charge into distance. अभी डांस देखना. अभी how to go about? डांस सुनना students, okay? For example, अभी मैंने एक external electric field लिया है. Everybody listen carefully. उसका मतलब क्या मालूम है? डांस सुनना. Suppose अगर मैंने कोई metallic plate लिया, okay? और ये plate को मैंने electrically charge कर दिया. यहाँ पे मैंने एक positive charge induce कर दिया. और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इस तरफ. तो कहने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है ड्यू टू द टू प्लेट्स. क्या ये क्लियर हुआ सबको? एग्रीड स्टूडेंट्स? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से? प्लेट्स की वजह से. सपोज अगर मैंने बोला कि जो भी चार्जेस है वो इंड्यूस हो गए सरफेस के ऊपर, तो इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया और यहाँ पर मैंने नेगेटिव ले लिया. अभी देखो फील्ड लाइंस किस तरफ जा रहा है? तो फील्ड लाइन हमेशा will go from positive to negative. Feel length will go from positive to negative.
P length will go from positive to negative. P length will go from positive to negative. P length will go from positive to negative. क्या ये clear हुआ everyone? हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक डाइपोल ले रहा था, सोचो तो मैंने ऐसा वाला डाइपोल लिया और उस डाइपोल को अज्यूम करो मैंने धागे से बांध के सस्पेंड किया। यानी ये सोचो स्टूडेंट्स कि मेरा जो डाइपोल है ना वो ऐसा ऐसा लाइन है। ओके, ठीक है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। एग्रीड? तो देखो डाइपोल का ये जो डिस्टेंस है वो 12 है। इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है? सर नेगेटिव टू पॉजिटिव। फील्ड किस तरफ जा रही है? सर फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। दोनों के बीच में एंगल क्या फॉर्म हो रहा है? थीटा फॉर्म हो रहा है। क्या इतना डायग्राम क्लियर है सबको? Yes. क्या ये Yes, sir. डाइपोल ऐसे रहेगा या डाइपोल टर्न होगा? टर्न होगा। तो कहाँ की तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? सर पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, बता चुका हूं मैं। नेगेटिव चार्ज कहाँ की तरफ जाएगा? सर डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तुम्हारा फोर्स होगा, ये भी तुम्हारा फोर्स होगा, है ना स्टूडेंट्स? इसको अगर मैं ड्रॉप कर दूं परपेंडिकुलर, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, इसको मैं ड्रॉप कर दूं परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 हो गया, ये थीटा है, तो कहना सर करस्पॉन्डिंग एंगल में ये भी थीटा हो गया। अभी डायग्राम क्लियर है स्टूडेंट्स? एवरीवन, क्या ये डायग्राम क्लियर है सबको? Yes, sir. टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आई वांट टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है सर? टॉर्क का फॉर्मूला इज perpendicular distance into force. So it's one force into the perpendicular distance, that is momentum. ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी यहाँ पे तुम्हारा कंपोनेंट क्या आएगा? आर एफ साइन थीटा। अगर मुझे ध्यान से सुनना, अगर मुझे मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स? अगर टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो थीटा क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। क्या यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम हो सकता है? हाँ सर, देखो ना, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। सर फोर्स किस तरफ जा रहा है? कैन आई टेक दिस एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाँ सर, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दूसरा फोर्स है। सो वन फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आई कैन टेक दिस एज माय फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे हाँ सर, तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली थीटा इज 90। एग्री स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? Students, are you getting this? Yes, sir. So now if I happen to go for R cross F, we consider, so R is what? Perpendicular distance we consider. अगर मैं इसको नाम लेता हूँ ट्राइंगल को A, B, C, तो can I say I'm getting in terms of AB? Agreed? AB and the force is F. Can I write on AB in terms of sin theta? Yes, we know that sin theta is equal to what? The sin theta is opposite upon hypotenuse. What is students? What is hypotenuse, students? What is hypotenuse? What is hypotenuse? What is hypotenuse? The distance between the two charges. क्या ये clear हुआ? Yes. Agreed. So now can I write down torque? The torque I can write down in what form? Listen carefully, students. Torque can be written in terms of what? AB की जगह पे can I write down? Sin theta 12. F क्या है? F क्या है? Sir, E is equal to F by Q. E is equal to F by Q, तो F क्या होगा? E into Q. Agree, students? Yes, sir. What is Q into 12? What is Q into 12? P. So can I get the formula for torque? हाँ sir, P E sin theta. तभी torque को हम लोग लिखते हैं P cross T, and the unit is Newton meter. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यानी अगर कभी किसी ने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज द फॉर्मूला, ध्यान से सुना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, then the answer for this torque acting on an electric dipole is always P bar cross E bar. It's a cross product. What is the component over here? Theta, sin theta. ध्यान से देखना, थीटा है क्या? देखो थीटा ये है, ध्यान से सुना, थीटा है क्या सर? थीटा is the angle between direction of electric dipole moment and electrical intensity. अभी सपोज लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ध्यान से देखना।
सपोज अगर ये पॉजिटिव को मैं इस तरफ रखता हूँ, यानी मैं डाइपोल ऐसे रखता हूँ, तो ध्यान से सुनना, अगर मैंने डाइपोल ऐसे रखा है तो इज माय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और विल इट बी एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। तो विल इट बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम या मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। विल इट गेट अ मिनिमम टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क? मिनिमम। minimum, इससे कहां से मिनिमम यार, जब Maximum, यहाँ पे sir. मैक्सिमम टॉर्क होगा ना, ये पॉजिटिव को यहाँ पे ले रहा हूँ ना मैं, अगर ये पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो एंटी पैरेलल हुआ। तो ये ध्यान में रखना, अगर E और P एंटी पैरेलल होगा तो वो मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। तो क्या होगा, पूरा रोटेट होके देखो ऐसा है, अगर वो ऐसा आता है तो अभी पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है। नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? हां, यस सर। पैरेलल। यानी ये ध्यान में रखना, अनस्टेबल के लिए your electric field intensity and your dipole moment both should be anti-parallel. This is unstable equilibrium. Okay, लेकिन stable equilibrium के लिए क्या होगा, your electric field intensity and your electric dipole moment both should be parallel. क्या ये clear हुआ? yes sir, यस And सर। theta is the angle between P and E, and the formula for torque is P cross E. That P is sin theta. Maximum torque कभी होगा when theta is 90 times the answer is 110. Is this clear with everybody? यस yes सर। sir, All of you, those who are into the meeting, all those 31 participants, all of you. Clear? Okay, students. Can I erase this? Fine. So students, see to it now. I'm winding up the sessions right now, okay, because I have an urgent one coming out, and those who are from foundation batch and foundation new batch, okay, 6:15. Sorry, at 3:30 sessions will not be taking place in that case. Okay, the next session will be regularly जो है हमारा होगा करके, अगर possibility होगा at 6:15, I'll let you know about it. I'll post it in the group. Let me speak to Gyan sir about it. Okay, but the schedule is exactly as per what it is going to happen with you. सिर्फ मेरा सेशन नहीं होगा at 3:30. Is that clear? Still, I'll post it in the group. यस सर। Okay. चलो बाय. Wonderful sessions.